Geographical perspective case study. Case study first, a role model to restore the ecology and safeguard human health in Dolala village in Meerut. In 2003, the pitiable condition of 12,000 people of village Dolala drew attention of the civil society, an NGO, मेरठ बेस्ड NGO। 2003 में दौराला में 22,000 नागरिकों की दयनीय स्थिति पर एक सिविल सोसाइटी का ध्यान आकृष्ट हुआ। The groundwater of this village was contaminated by heavy metals. The region was untreated. Wastewater of industries was reaching to the groundwater table. गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका था, क्योंकि उद्योगों का बिना उपचारित अपशिष्ट जल भूजल स्तर में निस्खलन हो रहा था। The NGO conducted a door-to-door survey of the health status of the resident and came out with a report. सिविल सोसाइटी ने घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट तैयार की। The Meerut-based NGO has developed a model for ecological restoration with the meeting of industrial officials, NGOs and government officials and other stakeholders. मेरठ के एक गैर सरकारी संगठन NGO द्वारा पारिस्थिति पुनर्भरण के मॉडल की रचना की। उन्होंने उद्योगों के पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी ने सक्रिय भागीदारी निभाई और उसके 3 साल बाद सार्थक परिणाम सामने आए। After 3 years, positive results came out. Among different efforts undertaken were by increasing the capacity of overtank. 900-meter pipeline was laid down for supply of water to the villagers. Pond was cleaned and filled with water. Rainwater harvesting structure has been constructed at different places, which help in diluting the contaminants of the groundwater after monsoon. 1,000 trees have also been planted to improve the environment. इन लोगों ने पारिस्थितिकी सुधार के लिए जो प्रयास किए, उनमें गांव की पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाना, 900 मीटर की एक अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई जिससे गांव वालों को जलापूर्ति हो सके। गांव के तालाब की सफाई की गई और उसे पानी से भरा गया। वर्षा जल संग्रहण के लिए ढांचों का निर्माण किया गया और वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ। 1000 पेड़ लगवाए गए जिससे पर्यावरण का संवर्धन हुआ। इस प्रकार इस इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के 3 साल बाद वहाँ सार्थक रिजल्ट सामने आए। केस स्टडी 2, रमेश, ए माइग्रेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। 15 years ago, Ramesh was leading a very miserable life of his family was very poor. He highly dependent on debt. He has to left his studies when he heard of migrant labor who sent some earning to their villages. He gone with them
for Punjab, but he could not get a good job, so he left for Surat, where he learned skill of welding, and he with a contractor moved many places. Now he remit 20,000 per year to his father in his native village, but he lead a lonely life as generally migrant workers lead. Due to low wages, migrant could not afford family expenditure. प्रवासी मजदूर रमेश की आर्थिक स्थिति 15 वर्ष पूर्व जैसी नहीं थी। आज वह सालाना 20,000 रुपये अपने पिता के पास भेज देता था। 15 साल पहले उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। जब गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से उसकी बात हुई, तब उसने उनके साथ पंजाब के लुधियाना के वस्त्र उद्योग में काम करने चला गया, लेकिन वहाँ मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी। उसके बाद उसने सूरत जाने का निर्णय लिया। वहाँ उसने वेल्डिंग का कौशल सीखा और एक ठेकेदार के साथ विभिन्न शहरों में वेल्डिंग का काम कर अपनी रोजी रोटी कमाने लगा और साल में कुछ बचत करके अपने परिवार के पास 20,000 रुपये भेजने लगा। लेकिन जैसा कि प्रवासी मजदूरों के साथ होता है, उन्हें अपने परिवार से दूर रहना होता है। शहरों में कम मजदूरी के कारण वह अपने परिवार को साथ नहीं रख पाते हैं। यह दर्द उन्हें झेलना पड़ता है। ज़्यादातर विकासशील देशों के प्रवासी मजदूरों की यही दास्तान है। केस स्टडी 3। Jhabua is one of the 5 most backward districts of the country. It is inhabited by Bhil tribe. People suffer due to the poverty because of high rate of resource degradation, both forest and land. A watershed management program under the Ministry of Rural Development was launched. This was implemented by Rajiv Gandhi Mission for Water Management. It has treated 20% of the total area of Jhabua district. The Petalwad block, with the help of NGO, has a successful story. Government, NGO partnership and community participation in managing watershed program. Bhil community have revitalized large part of the common property resource. Each household planted and maintained one tree on the common property. They also have planted fodder grass on the pasture land and adopted social fencing of these land for at least 2 years. No open grazing on these land, but stall feeding of cattle was promoted. They removed encroachment with the help of government officials from the common land. झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह देश के 5 सर्वाधिक पिछले जिलों में से एक है। यह भील जनजाति का क्षेत्र है जो गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं। यह गरीबी जंगल और भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रवृत्त हो गई है। यहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय दोनों ने ही जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित किया, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। यह निम्नीकरण को रोकने और भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध हुआ। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम भूमिगत जल, भूमि जल और वनस्पतियों के बीच संबद्धता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन एवं
सामुदायिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्ष में राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संग्रहण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की 20% भूमि का उपचार किया। झाबुआ जिले के पेटलाबाद विकासखंड में सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संग्रहण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल एवं रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने साझी संपदा संसाधन को पुनर्जीवित किया। एक परिवार ने साझी संपदा पर एक पेड़ लगाया और उसे संरक्षित किया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चरागाह भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्ष तक उसकी सामाजिक घेराबंदी की। जमीन पर कोई खुली चराई न करने का निर्णय लिया। पशुओं के आहार हेतु नांद बनाए गए। सामुदायिक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।